Welcome back, guys. So, today's topic is Piaget psychology. Okay, so today I will tell you about the schemas, the three components of Piaget developmental psychology, three components that are schemas, accommodation, and the stages of cognitive development, criticism. So, and I will also provide the solved MCQs related to this topic in my next video. So please like and subscribe my channel to get more interesting videos. Okay, let's start. So about Piaget, and he was a Swiss biologist, philosopher, and a child psychologist. Oh, he was known as the father of child psychology. Okay, he was the Swiss biologist. Why he was called the biologist? Because he knew the importance of the environment and the process of the adaptation. Also, his theory tells about that how the mental development it takes place from infancy to adulthood, from birth to adulthood जो है mental development किस तरह से होती है. And इनका मानना है कि children they are as intelligent as the adults are. Okay, but the only difference is that they think differently. The children they think differently, but they are as intelligent as the adults. They use their brain completely fully. ठीक है. Okay, and also the mental development of the child depends on the heredity and environment. Okay, this is the important point कि heredity environment जो है बच्चे की mental development पे काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं. Okay, before starting this video further, I would like to tell you about what is the cognition. Cognition. First, we should know the meaning of cognition. So, cognition it is the mental and intellectual abilities. Mental, intellectual abilities. ठीक है? Is cognition. It is cognitive, mental, and intellectual abilities like learning, perception, evaluating, reasoning, remembering. They all are the abilities, mental abilities. That is what called cognition. And cognitive development. What is cognitive development? So cognitive development हुआ, it is the construction of the thought processes, which include remembering, problem solving, and decision making from childhood to adulthood. So it is the construction of a thought process, and it refers how a person it what it refers कि इंसान जो है how a person perceives things or acquire the knowledge, okay, from his or her world through the interaction of genes and learned factors. Okay, so it is all about the cognitive development. So the three basic components are schemas, adaptation processes, and the stages of the development. First, we will know about the schema. What is a schema? It is the building blocks of the knowledge. What it means that schemas are the mental structure or the basic building blocks of the knowledge. Okay, for example, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें जानने की कोशिश करता है. उसके सामने अगर कोई कैट है, बिल्ली आ जाती है, तो उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में एक मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाता है. एक बेसिक सा स्कीमा बन जाता है उस कैट को लेके, दैट द कैट हैज़ 4 legs एंड 1 tail, 2 ears. ठीक है, इस तरह से म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये एक स्कीमा उसके दिमाग में तैयार हो जाता है. सो नेक्स्ट इज एडेप्टेशन प्रोसेसेस. अब एडेप्टेशन प्रोसेसेस होती हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. ठीक है, इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, कि कैसे कैसे बच्चा के दिमाग में जब वो दूसरी और भी नई नई चीज़ें देखता है तो उसके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. देन वो चीज़ों को एसिमुलेट करता है एंड लास्ट में एकोमोडेट करता है. अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे एसिमुलेशन वर्सेस एकोमोडेशन. आप यहाँ पे देखिए, तो सपोज एक बच्चे ने एक डॉगी देखा तो उसके दिमाग में स्कीमा बन गया दैट इट हैज़ 4 legged, इट इज़ अ 4 legged एनिमल. व्हेन ही सीज अ काउ, he called it a dog.
कि ये तो डॉग है क्योंकि इसके 4 लेग्स हैं, ठीक है। बट वहाँ पे जब हम उसे करेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये डॉग नहीं है, ये तो काऊ है। वाई? बिकॉज ये काफ़ी साइज में काऊ काफ़ी बड़ी होती है, तो एंड इट लिव्स ऑन द फार्म, ठीक है। सो वहाँ पे बच्चे ने जो है चीज़ों को एसिमिलेट किया, ठीक है। और वो देखता है, कहता है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उसके दिमाग में हमने एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये तो काऊ है। तो एक नया, जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट को जब हम ऐड करते हैं उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, व्हेन वी ऐड अ न्यू कॉन्सेप्ट इन existing schema is called assimilation. ओके, सो यहाँ पे उसने देखा कि ठीक है ये जो है डॉग नहीं है, ये काऊ है बिकॉज इट इज़ द लार्ज एनिमल। सो यहाँ पे उसने कोशिश की चीज़ों को समझने की, बट फिर भी वो कंफ्यूज हो गया जब उसने एक हॉर्स देखा। उसको नहीं पता ये हॉर्स है, ठीक है। उसने फर्स्ट टाइम उसने हॉर्स देखा तो ये बोलेगा अरे ये तो बड़ा भी है और इसके 4 लेग्स भी हैं, तो ये वो इसको काऊ बोलेगा कि ये तो काऊ है। पर फिर हम इसे यहाँ पे करेक्ट करेंगे बेबी को कि नहीं ये काऊ नहीं है, ये हॉर्स है। वाई? क्योंकि जो काऊ है वो मूमू करती है और हॉर्सेस जो है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसकी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। जब हम नया कोई कॉन्सेप्ट जब उसके दिमाग में डालते हैं तो उसका जो पुराना जो स्कीमा है, ठीक है, वो कंफ्यूजन उसके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। फिर वो चीज़ों को एकोमोडेट करता है, फिर उसका जो एंड द चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीमा ड्यू टू द डिसइक्विलिब्रियम, जो उसके दिमाग में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड द डिसइक्विलिब्रियम। जो डिसइक्विलिब्रियम उसको जो उसके दिमाग में आया है, ठीक है, उसको हम करेक्ट करते हैं, उसको हम बताते हैं कि नहीं जो काऊ है वो उसके 4 लेग और लार्ज बॉडी होती है, बट जो हॉर्सेस होते हैं वो जो है उनकी वॉइसेस जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। काऊ मूव करती है और हॉर्सेस जो है नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है उनका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो चेंज हो रहा है डिसइक्विलिब्रियम की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। सो डिसइक्विलिब्रियम की वजह से उनका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं यहाँ पे कि एक बॉय ने देखा, उसने कैट को देखा, तो उसने कहा, उसके दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ गया कैट का कि ठीक है कैट ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन जब वो एक कब को देखता है यहाँ पे, तो वो उसको कैट बोलता है कि इट इज़ अ कैट। पर वहाँ पे उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा जब हम बोलेंगे कि नहीं ये कैट नहीं है, ये तो कब है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। फिर जो अब हमने नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया ना कि नहीं नहीं ये कैट नहीं है, ये कब है, तो इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। लेकिन जब वो समझ लेता है कि हाँ कब अलग होता है, कैट अलग होता है, ठीक है। सो कब इस तरह का होता है, कैट इस तरह की होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, ठीक है, वो चेंज हो रहा है जब हमने उसे करेक्ट किया। तो दैट इज वी कॉल्ड एकोमोडेशन। उसने वो अकोमोडेट कर लिया, ठीक है। और और टू गेन न्यू नॉलेज, उसने एक नई नॉलेज जो है ले ली कि हाँ ये कब ऐसा होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्कीमास। नेक्स्ट आता है प्याजे की स्टेजेस। इट हैज़ अ 4 स्टेजेस। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन। पहले एकोमोडेशन के बाद एक और चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? इसके अंदर हम एसिमिलेट और एकोमोडेट करी हुई चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा जितनी भी नॉलेज है उन सबको ऑर्गेनाइज कर लेता है, ठीक है, लास्ट में। सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज stages. So there are 4 stages in cognitive development of Piaget. First is sensory motor stage, which
which occurs in children from 0 to 2 years. Next is pre-operational 2 to 7 years. Concrete operational होती है 7 to 11 years, and the formal operational adolescence से adulthood तक. So we will study it one by one. And what are the stage attainments? We can see it. Sensory motor, इसके अंदर जो senses हैं, they are the teachers only. ठीक है. When the child experiences the world through the fundamental senses of seeing, hearing, touching and tasting. इसके ये जो basic चीज़ें हैं, ठीक है, ये सेंसेस के थ्रू जो है बच्चा सीखता है. एंड द मेन जो अचीवमेंट है इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस. इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है. दैट मीन्स आउट ऑफ साइट, दैट मीन्स आउट ऑफ माइंड बिफोर ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है. इसमें हम बच्चे के सामने कोई चीज़ ले जाते हैं 2 साल के बच्चे के नीचे, तो उसके सामने कोई चीज़ रखो तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. फिर उसके सामने से हटा दो तो वो भूल जाएगा, गायब, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसके दिमाग से गायब. वो कुछ और देखेगा. ठीक है. वो नहीं ढूंढेगा, उसको नहीं पता कि वो क्या था. लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस में होता है कि बच्चा जो है चीज़ें भूलता नहीं है. ठीक है. जब वो 2 साल का होने लगता है तो उसके सामने कोई चीज़ रखो, ठीक है, तो वो, और फिर हटा लो, लेकिन वो उस चीज़ को फिर ढूंढेगा. ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके में जो है अचीव हो जाएगा तब तक. ठीक है. वो चीज़ों को भूलेगा नहीं और वो रोएगा उस चीज़ के लिए. सो दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है. एंड रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर होता है इस स्टेज के अंदर. प्री ऑपरेशनल में इट इज़ अ क्रूशल स्टेज फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट. इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड, बच्चा जो है पहले सोचता है, उसके बाद में उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होती है. एंड ठीक है, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू इंटरनली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू द लैंग्वेज एंड द मेंटल इमेजिनरी, and they start to see the world from the other people's perspective. So rapid increase in language ability. Animism, बच्चा animism पे believe करता है. Symbolic expressions, child believes in animism and it occurs in pre-operational stage. This is also called the toy age. ठीक है. Okay. But after but in later stages, child doesn't believe in animism. Okay. Irreversibility रहती है. Irreversibility that means अगर बच्चे को हमें सिखाएंगे कि पानी है, वाटर से जो है आइस में, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, कैसे, उसको फ्रिज में रख दिया, हम बता देंगे कि हाँ हाँ ये तो आइस बन जाता है. बट अगर आइस को हम बाहर छोड़ दें और उसको बताएं कि आइस जो है वाटर भी बन जाता है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा. इट इज़ रिवर्सिबिलिटी उसमें होती ही नहीं है. ठीक है. वो नहीं समझ पाएगा, बस वो एक ही डायरेक्शन में सोच पाएगा. ईगोसेंट्रिज्म होता है, ईगोसेंट्रिमिटर, दैट मीन्स चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, ही इज सेल्फिश एंड नेग्लेक्ट्स टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम द अनदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझता नहीं है, सिर्फ उसको अपनी ही पड़ी होती है. ठीक है. सेंट्रेशन होता है एंड ही फोकस ओनली one aspect of the situation at one time. Okay. Next is concrete operational. It occurs between the 7 to 11 years and it is a major stage of child cognitive development and it is the beginning of logical and operational thinking. So ये एक शुरुआत है logical और operational thinking की. And he become able to think logically. ठीक है. एंड इसके अंदर जो इनके जो मेन अटेनमेंट्स हैं वो हैं अचीवमेंट्स. कंजर्वेशन, उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाएगा. दैट मीन्स नाउ ही कैन अंडरस्टैंड द मास, वॉल्यूम, शेप, एरिया. इन सबको हम वो समझ सकता है कि ठीक है व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ वॉल्यूम. तो मेंसुरेशन इसमें कराई जाती है. ठीक है. क्लासिफिकेशन जो है वो समझ पाएगा, नेचर एंड क्वालिटी. ट्रांजिटिविटी होगी, दैट मीन्स ही कैन एबिलिटी टू अरेंज ऑर्डर फ्रॉम लो टू हाई या वाइस वर्सा. ठीक है. वो चीज़ों को जो है समझ पाएगा, ऑर्डरली वो अरेंज कर पाएगा चीज़ों को, वो ये चीज़ें भी समझ सकता है. एंड रिवर्सिबिलिटी जो है इस स्टेज के अंदर अटेन होती है. नाउ ही कैन अंडरस्टैंड द हाउ आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑल्सो. ठीक है. सो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू स्टार्ट. दैट मीन्स सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड बन रही है और लिक्विड से सॉलिड बन रही है, हाउ. सो वो चीज़ों को ये समझ पाएगा, वही चीज़ें. ठीक है. एंड डिसेंट्रेशन, दैट मीन्स
मोर देन वन एस्पेक्ट एट अ टाइम, वो चीज़ों को अब जो है एक ही एस्पेक्ट पे जो है फोकस नहीं करता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को पे वो ध्यान दे सकता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल, it is a most analytical stage of the cognitive development, because इसके अंदर ये 11 प्लस जो है फॉर्मल ऑपरेशन इसमें आ जाता है, और इसमें बच्चा काफ़ी एडल्ट मतलब एडल्टहुड की ओर चले जाता है, टीनेज, ठीक है। टीनेजर्स जो होते हैं इसके अंदर दे कैन थिंक सिस्टमेटिकली, वो सोच पाते हैं, एंड can reason about the abstract concepts and can understand the ethics and scientific reasonings also. So इसके अंदर जो इनके जो मेन जो की फीचर्स हैं आप यहाँ पे देखिए, दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। वो अब क्योंकि शुरुआत तो कंक्रीट ऑपरेशनल से ही हो गई थी इन चीज़ों की, पर फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर वो कम्प्लीटली वो अपनी एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी वो दे सकते हैं, ठीक है। और उनकी एक अपना परसेप्शन बन जाता है, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है, रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी डेवलप हो जाती है, एंड एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म ये इसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये सारे स्टेजेस थे। अब हम देखेंगे इसके अंदर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सो अब आप ध्यान से सुनिए, जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्याजे की, कि एज के हिसाब से जो है बच्चों को टास्क दिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे की जो एज है स्टेज वाइज, ठीक है, स्टेज वाइज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एज के हिसाब से ही उसे टास्क दिया जाए, ठीक है। ये नहीं कि कोई अगर यहाँ पे देखिए, कोई अगर सपोज कोई 6 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चों को आप समझाओ कि मास एरिया वॉल्यूम आप समझाने बैठो तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो उसकी एज के हिसाब से ही उसे जो है टास्क दिया जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा। एंड चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज, वो कोई स्टेज जो है स्किप नहीं करते हैं, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है 11 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, बट वो स्टेज स्किप नहीं करेगा, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस जल्दी होगी, हाँ, वो उस लेवल तक जल्दी पहुंच जाएगा, उस स्टेज तक फॉर्मल तक वो जल्दी पहुंच सकता है, पर वो स्किप नहीं करेगा, उसको जो है पोस्ट ऑपरेशनल से, कंक्रीट ऑपरेशनल से होके ही गुजरना होगा फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ। एंड द चिल्ड्रन लर्न स्पीडली इफ वी प्रोवाइड द कंक्रीट मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज इम्प्लीकेशन। बच्चे को अगर हम कोई अच्छा मटेरियल उसे प्रोवाइड करें, सो ही मे लर्न स्पीडली, ठीक है। एंड let the child discover, the child, he is a little scientist, he is a little discoverer, and so treat a child as a little scientist, ठीक है। so learning by doing इनकी अप्रोच थी। and the teacher should arouse the curiosity of the child through the planned activities, और बच्चे के अंदर हम क्यूरियोसिटी को हम जगा सकते हैं, उठा सकते हैं थ्रू द प्लान्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। एक सिस्टमेटिकली उनको ऑर्डर, हमें टीचर को हमें उसे फैसिलेट करना है, एंड वी शुड एक्ट एज अ फैसिलेटर, एंड उनको जो है स्पून फीडिंग नहीं देनी है। सो दिस वॉज द एजुकेशन implications of the Piaget. So an important implication of Piaget theory is the adaptation of the instruction to the learner's development level, ठीक है। the content of the instruction, it needs to be consistent with the development level of the learner, and the teacher's role जो मैंने आपको बताया is to facilitate learning by providing a variety of the experiences, ठीक है। एंड द डिस्कवरी लर्निंग इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर to explore and experiment, thereby encouraging the new understandings. So opportunities that allow students of different cognitive levels to work together often encourage less mature students to advance to a more mature understanding. And one more important implication for instruction is to use of the concrete hands-on experiences. We should provide them the lots of hands-on activities to help the children to learn themselves, ठीक है, ताकि वो खुद से सीख पाए। हमें उन्हें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी को हमें जगाना है, ठीक है। और उन्हें जो है खुद से ही एक्सप्लोर करने देना है ताकि वो खुद से सीखें, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। हमें उन्हें फैसिलिटेट करना है, हमें उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, जा जाके उंगली नहीं करनी है, हमें उन्हें फैसिलिटेट करना है, दूर से सुपरवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे
ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्याजे की। नेक्स्ट क्रिटिसिजम्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था कि जो प्याजे था उन्होंने जो थी it was based on his three children. Others were from well-educated parents and of higher socio-economic status. अब इनका क्रिटिसिज्म यही था कि इन्होंने अपने बच्चे पे ही रिसर्च कर डाली। जो इनके जो तीन बच्चे थे उन्हीं पे प्याजे ने जो है रिसर्च करी, और ठीक है, और बाकी रिसर्च ऑल्सो शोड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्होंने बताया कि हेरिडिटरी जो है वो अफेक्ट करता है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे। और रिसर्च ने ये भी बताया है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी बच्चे की जो है स्टेजेस पे इन पे जो है रोल प्ले करते हैं, सिर्फ एज से कुछ नहीं होता। ठीक है, इन्होंने सारा फोकस इनका एज पे था कि एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो है मेंटल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बट इन्होंने ये नेगलेक्ट कर दिया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।